माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। क्वेश्चन और सवाल। क्वेश्चन नंबर 152। 152 मिनिस्टर, माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 152 माननीय सदस्य श्री के.आर. सुरेश रेड्डी। श्री के.आर. सुरेश रेड्डी। सप्लीमेंट्री नंबर 1 डॉक्टर एम थम्बी दुरई, प्लीज फर्स्ट सप्लीमेंट्री। प्लीज मेरा आग्रह होगा अपनी सीट पर बैठे। ये सदस्यों का काल होता है, इसको चलने दें। First of all, I thank the Honorable Prime Minister and Health Minister for sanctioning medical college in Tamil Nadu. Sir, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, प्लीज। present position of the AIMS in Madurai, because Prime Minister came and laid the foundation. Please be brief and concise, please. Prime Minister came and laid the foundation. Please. I want to understand the Health Minister, what is the status of the AIMS in Madurai about the medical college? Reply. Sir, whatever I could understand is Please, talking about Honorable Minister, please, just एक मिनट सर। आप ये मत बोलिए वोटर माननीय सभी सदस्यों से मेरा आग्रह है, आप इंक्लूडिंग माननीय एलओपी साहब से, बहुत ही वरिष्ठ बड़े जानकार और इतने दिनों से लंबी वो राजनीति में हैं, और आप सब लोग जानते हैं माननीय चेयरमैन साहब ने जो उस पर निर्णय दिया, आज पुनः मैंने उसका उल्लेख किया, उसको रीओपन नहीं किया जा सकता। एक मिनट। और आज बहुत दिनों बाद, इसके बाद हम सब साथ बैठे सदस्यों का काल है, कम से कम सवाल जवाब और निकाल तो चलने दें। मेरा आपसे आग्रह है सबसे, प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज रिप्लाई। Sir, we are actively pursuing the development of the Madurai AIMS, about which the minister has, honorable member has asked. ठीक, आप वहाँ पर हैं, जो निर्णय लेंगे वो उस दिन हम मान गए, लेकिन आज हम जो नया 267 के तहत जो नोटिस दिए हैं, जिस नोटिस में केरोसिन, एलपीजी, डीजल और पेट्रोल के बारे मैंने में माननीय एलओपी उसी पर माननीय चेयरमैन की चीजें आपको बताई कि 4 नोटिसेज हैं, इस पर बहस नहीं हो सकती, इस पर मैं अलाउ नहीं कर सकता। प्लीज काइंडली बियर विथ मी, काइंडली कोऑपरेट। एक ही मिनट, काइंडली कोऑपरेट। इसके अलावा हमारे जितने भी डीएम किए, मैं आपसे आग्रह करूंगा, शायद माननीय एलओपी, शायद शोरगुल के कारण आप सुन नहीं सके, सबका मैंने नाम लिया, सारी नोटिसेज का नाम लिया, रिकॉर्ड देख लें, और माननीय चेयरमैन साहब के निर्णय से मैंने आप सबको अवगत कराया। आप सब जानते हैं उस पर दोबारा बातचीत नहीं हो सकती, वो रीओपन नहीं हो सकता। मेरा आग्रह है, ये सदस्यों का शून्यकाल है, चलने दे। प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज रिप्लाई। आप सुप्रीम अथॉरिटी है, आप सर प्लीज रिप्लाई, मैंने सुन लिया आपको। प्लीज Sir, the government is actively pursuing the development of the Madurai AIMS, as the development involves financial support from the Japanese also. That process is in very advanced stages, and very soon the honorable member will see that the process of construction activities and others at Madurai will start soon, sir. Second supplementary, please. Shri Amar second supplementary. Dr. Amar Patnaik. Dr. Amar Patnaik. Honorable Chairman, sir, thank you so much. So while I compliment the Honorable Minister and the Government of India for the initiative taken in upgradation of the district hospitals,
may I request Honorable Minister to consider through you if the aspirational districts in the country where the problem is of acute poverty due to various factors, the ratio of support from Government of India could be increased to 90-10 ratio instead of 60-40 ratio, so that they can come up to the level much faster compared to the other districts. Thank you so much. Thank you. Third phase, number one, sir, we have prioritized the creation of these new medical colleges in the aspirational district, and 37 aspirational districts are seeing the development of new medical colleges. But as far as the support of Government of India is concerned, in the northeastern states, 90% of the support is given by the Government of India, and for the rest of the country, it is a ratio is 60-40, sir. PC Subhash Chandra Bose. My question was the PC aspirational Subhash districts. Chandra Bose जी. सवाल. बोल देता हूँ ना, बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं। Honorable Deputy Chairman, sir, the state government of Andhra Pradesh has submitted the proposal for 13 new medical colleges. May I know from the Honorable Minister whether the government has considered the said request and support provided to Andhra Pradesh for improving the health care services. Subhash Chandra Bose ji, please be brief. Honorable Minister. Sir, in Andhra Pradesh also, the government has, I think, sir, in the answer itself, I have given in detail that Andhra Pradesh also, the government has given 3 new medical colleges in the phase 3. The request of the Andhra Pradesh government has already been acceded to, sir. Shri P. Bhattacharya ji. Honorable P. Bhattacharya ji, question number 153. Minister. Honorable Minister. Supplementary Dr. Vikas Mahatme. Dr. Vikas Mahatme. थैंक यू चेयरमैन सर, मेरा ये सवाल था कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है लोगों का हेल्थ के ऊपर, वो कम करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और मैं उनकी सराहना भी करूँगा कि इस बजट में काफ़ी आवंटित किया हुआ रकम आवंटित की गई है हेल्थ के लिए, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के लिए क्या कदम इस साल उठाए जाएंगे, ये मेरा सवाल। सर, ऑनरेबल मेंबर ने अगर मेरे जवाब को विस्तार से मैंने इसके बारे में बताया है। पहली बात तो सर, पिछले 4 साल में लगातार हम देखेंगे कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम होता जा रहा है, और इसके साथ साथ भारत, जबकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से, बहुत सारी स्कीम्स के माध्यम से, डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से, और इसके साथ साथ सर आयुष्मान भारत के माध्यम से, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के क्रिएशन के माध्यम से गरीब लोगों को देश के 24,000 अस्पतालों में, देश में कहीं पर भी ऐसे करीब 10.74 करोड़ फैमिलीज़ को इलाज की व्यवस्था की दृष्टि से, मैटरनल हेल्थ, सर चाइल्ड हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, यानी सर इतने प्रकार की स्कीम्स हैं, एडोलेसेंट, इन्फेंट हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, इन सब के लिए जो मैंने सर उत्तर दिया है, उसमें मैंने, अगर आप कहें, मैं ये सारी स्कीम्स का विस्तार से वर्णन दिया है, जहाँ बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली भारत सरकार देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर करने के लिए, उनके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, और जो पिछले 4-5 सालों में, 6 सालों में, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, जो फैक्ट्स हैं वो सिद्ध कर रहे हैं, डाटा सिद्ध कर रहे हैं कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी जो है सर
कम हुआ है और जो पर कैपिटा जो हेल्थ के ऊपर हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो भी लगातार, मैंने उत्तर में बताया कि वो भी धीरे धीरे करके सर इम्प्रूव हो रहा है भारत में। थैंक यू। श्री केजे अल्फोंसो। केजे अल्फोंसो। Sir, the cost of medical services will increase if doctors charge more. But today what we find is that some of the medical colleges are charging exorbitantly high fees, and therefore will the government of India bring in a legislation to bring down the fees in medical colleges? गवर्नमेंट के दोनों सदनों में 2019 में नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि एक सबसे बड़ा रिसेंट हिस्ट्री में मेडिकल एजुकेशन का रिफॉर्म है, इसको लाया गया है। इसके तहत सर बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं और उसी के तहत जो है हमने देखा है कि देश में 30,000 से ज़्यादा MBBS की सीट्स और 24,000 से ज़्यादा PG सीट्स पड़ी हैं। उसमें जो सर रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसमें जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा भी जो बच्चों के लिए फीस इत्यादि ली जाती है, उसको कंट्रोल करने की दृष्टि से, उस पर गवर्नमेंट की पैनी नज़र रखने की दृष्टि से, उसकी कैपिंग करने की दृष्टि से उसमें पर्याप्त प्रावधान है और इस सारे विषय को गहराई और गंभीरता से नेशनल मेडिकल कमीशन देखता है और सरकार जो है उनको सहायता करती है। श्रीमती कांता करदम। धन्यवाद सर। गरीब जनता को स्वास्थ्य देखभाल की निःशुल्क सुविधा प्रदान करने के लिए पिछले 2 वर्षों के दौरान कितने नए अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, इसका राज्यभर विवरण क्या है? धन्यवाद। लगातार खाली पिछले 2 वर्षों में नहीं, लगातार पिछले 6-7 साल से विशेष रूप से हमने उत्तर में बहुत विस्तार से इसके बारे में वर्णन किया है सर। नए मेडिकल कॉलेजेस के क्रिएशन से लेकर और जो आयुष्मान भारत की स्कीम है उसके माध्यम से हम जो है देश के लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी आयुष्मान भारत में भी 1 करोड़ और 66 लाख जो है हॉस्पिटल एडमिशन जो है गरीब लोगों के हुए हैं और सारे देश में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को प्रिवेंशन, प्रमोशन और पॉजिटिव हेल्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए सर देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्रिएट करने की एक्टिविटी चल रही है, जिसमें से ऑलरेडी सर 63,000 कोई और बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। 70,000 अभी सर 31 मार्च तक और अगले साल दिसंबर में 31 तक 1.5 लाख के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ इतनी बड़ी संख्या के अंदर हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज़ के लिए, कैंसर्स के लिए, प्रिवेंशन के लिए, वहाँ पर सर डायग्नोस्टिक्स के लिए, वहाँ पर दवाइयों के लिए, ब्रीफ, ब्रीफ, सब चीज़ों के लिए सर भारत सरकार द्वारा फैसिलिटीज दी गई है और ये प्रक्रिया लगातार 5-6 सालों से बहुत तेजी से चल रही है सर। House is adjourned till 2 p.m. House is adjourned till 2 p.m.